Hello students, today we are going to start with the chemical properties of carboxylic acids. As in chemical properties, the carboxylic acid gives 4 different types of chemical reactions. One is the reaction due to hydrogen atom attached to the carboxylic group, as this is the carboxylic group. Reaction due to this hydrogen, it is first set of the reaction. Second is the reaction due to OH group. Third, reaction due to carbonyl group. And the fourth part, reaction due to the alkyl part and the benzene ring. If it contains a benzene ring, the reaction due to alkyl part or due to the benzene ring. These are the 4 set of reactions which carboxylic acids gives. So let's start with the first part, that is reaction due to hydrogen atom which is attached to the carboxylic group. As in the last lecture, I have already taught you about the acidic character of carboxylic acids. So the first set of reaction is reaction due to hydrogen atom of carboxyl group. This is the first set of reaction. So in under this it comes the acidic nature only, कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं. मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताया था, बट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर. एज फर्स्ट थिंग दैट इज दे टर्न्स blue litmus paper to red. So all carboxylic acids turns blue litmus paper to red. This is the first. Second, if a compound is acidic in nature, it always reacts with the metals. So these carboxylic acids also reacts with the active metals like CH3COH reacts with sodium metal so that it gives CH3COONA plus hydrogen gas. Half mole of hydrogen gas is released. ठीक है, समझ में आया ये रिएक्शन. हम हमेशा ही करते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड का हमें एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन करना हो तो हम उसका रिएक्शन मेटल के साथ करा देते हैं. तो ये एक है. तो ये क्या बन गया, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था और ये जो बना है ये क्या है, सॉल्ट है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉल्ट, इट इज सोडियम एसिटेट. नेम क्या है इसका, सोडियम एसिटेट. नाउ और भी मेटल्स यूज कर सकते थे हम सेम रिएक्शन जिंक मेटल के साथ भी कैरी आउट कर सकते हैं. अगर मैं जिंक मेटल के साथ करूँगी तो ये क्या बना देगा, देखो जिंक की वैलेंसी 2 होती है, 2+ होती है. सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. ये यहाँ पे 2 होगी तो इसमें 2 रहेंगे, 2 टाइम्स, और एक Zn. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस. ये हो सकता है. एक और मेटल के साथ में हम कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है, आपको 2 में ही समझ में आ गया होगा. तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल्स. अब नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अल्कलीज. Next, acidic strength is also explained with the help of not only with the metals, it also the compound, if it is acidic in nature, it reacts with the alkalis alkalis like NaOH or KOH, or it also reacts with carbonates and bicarbonates. यानी जितने भी acidic compounds होते हैं वो सारे बेस के साथ रिएक्ट करते ही हैं और वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं. तो CH, अब मैं ले लेती हूँ अल्कली के साथ रिएक्शन. अगर मैंने अल्कली के साथ किया तो CH3COOH, इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ किया तो इट विल गिव व्हाट, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर. And next is reaction with carbonate and bicarbonates. CH3COOH with Na2CO3. अगर Na2CO3 के साथ कराएंगे तो ये भी ये क्या देगा, CH3COONA प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. One more reaction, that is the reaction of carboxylic acid with sodium bicarbonate.
ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होगी. एंड दिस रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल्स. Carboxylic acids reacts with sodium carbonate to give carbon dioxide, and this carbon dioxide which is produced in the reaction beaker, it emerges in the form of the effervescence, and which confirms that the compound is carboxylic acid, not phenol, as phenols do not give reaction with sodium carbonate. ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ में भी बहुत ही माइल्ड इफरवेसेंस वो देता है. हाँ, इसीलिए हम Na2CO3 कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग रिएजेंट बिटवीन फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नोट डाउन करके रख लो. दिस रिएजेंट, दैट इज Na2CO3 कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग रिएजेंट बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल्स. अगर हमें लैब में आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन आया तो फिर ये वाले टेस्ट आप करते भी हैं फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में, तब हमें आपको और क्लियर होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ही हम Na2CO3 ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट, वो बबल्स इमीडिएटली देने लगता है और फिनॉल्स देता ही नहीं है, क्योंकि वो बाइकार्बोनेट के साथ भी वैसा ही सेम है. बट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास में और आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर रहे हैं तो वो इमीडिएट ब्रिस्क इफरवेसेंस दे देगा. पर अगर फिनॉल में हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो वो माइल्ड इफरवेसेंस, बहुत धीरे से, पहले एक बबल आएगा फिर थोड़ी देर से दूसरा बबल आएगा, ऐसा होता है. मीन्स दिस reagent can be used, there is sodium carbonate can be used as a distinguishing test between carboxylic acid and phenols. ये एक क्वेश्चन हुआ. दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो कहाँ से आया, whether it comes from the कार्बोनेट पार्ट और फ्रॉम दी कार्बोक्सिल पार्ट. तो ये कहाँ से आता है, हमेशा कार्बोनेट पार्ट से ही आता है. देखो मैं आपको ये रिएक्शन करके बताती हूँ, आपको और क्लियर होगा. जैसे अगर सपोज करिए मेरे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन मैंने किससे करा दिया, Na2CO3 के साथ में अगर मैं करा दूं या फिर NaHCO3 के साथ करा दूं, तो मैं NaHCO3 के साथ ले लेती हूँ C डबल बॉन्ड OH और एक और O आएगा इधर, ऐसा. तो ये हो गया Na2CO3 का NaHCO3 का स्ट्रक्चर. अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ चले जाता है और ये जो है ये यहाँ आ जाता है. तो ये कैसे दिखने लगेगा, RCOONA आ जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट यहाँ चले गया तो ये कैसे दिखेगा, HCOOH ऐसा होगा. और बाद में वो ब्रेक हो जाएगा काय में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड है जो ब्रेक हो जाएगा. दिस पार्ट इज द कार्बोनिक एसिड. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा, वो HCOOH है. लेटर ऑन इट ब्रेक एंड इट फॉर्म्स व्हाट, H2O फॉर्म कर देगा और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट कम्स फ्रॉम व्हाट, इट कम्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम द कार्बोनेट पार्ट और फ्रॉम द बाइकार्बोनेट पार्ट, बट नॉट फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम वेयर डज इट कम्स. तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है हमारे पास में. वो जो इनऑर्गेनिक पार्ट हमने लिया था, यानी कि सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ है. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन. ठीक है, समझ में आया आपको. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शंस, दैट इज द रिएक्शंस ऑफ reaction due to the hydrogen atom of the carboxyl group. Now let's see the second part. Now the second part is reactions due to the OH group of the carboxylic acid. अब अगर इसके साथ करना है तो OH ग्रुप की रिएक्शंस कैसे याद रखना. देखो H ग्रुप के लिए हमें पता है H यानी एसिड होता है, एसिडिक कंपाउंड विच इज एसिडिक इन नेचर, इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस. इसीलिए जितने भी हम एसिडिक के लिए टेस्ट के लिए जो भी करते हैं वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट पार्ट में आ गई. अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि ड्यू टू OH ग्रुप जो भी रिएक्शंस होती होंगी वो. तो इसे याद करने का भी एक बहुत इजी मेथड आपको बताती हूँ. एक्चुअली ये रिएक्शंस जब भी देता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म करता है. और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए. कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या है, एसिड क्लोराइड है. जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ, RCOCl एसिड क्लोराइड है, या फिर इसको हम क्या बुलाएंगे, क्लोराइड्स. हाँ, मैं लिखते भी चलती हूँ, एसिड क्लोराइड्स है. फिर नेक्स्ट है ईस्टर्स, RCOOR-. फिर अमाइड्स, RCONH2. और फिर एक होते हैं
acid anhydrides, RCO twice O, that is acid anhydrides. तो ये सभी डेरिवेटिव्स बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शंस कौन देता है? OH ग्रुप ही देता है. अब देखते हैं कैसी रिएक्शंस होती है. सो फर्स्ट इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड. तो ये कैसे होगा? एक सिंपल सा पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर इसका रिएक्शन किसके साथ हम कराएंगे? किसी भी हैलोजिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराइए. अब आपको पता है कौन से हैलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि मुझे क्लोरीन चाहिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? क्लोरीनेटिंग एजेंट. कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. तो RCOH के साथ में कौन सा क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज कर सकती हूँ? PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं. कोई भी रिएजेंट यूज करो और ये रिएक्शन क्या देगा फिर इसमें? अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? RCOCl फॉर्म हो जाएगा, एसिड क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये PCl3 के, अब ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि क्या बाय प्रोडक्ट होता है और क्या मेन प्रोडक्ट होता है. तो एसिड जब भी PCl5 के साथ में रिएक्शन होती है तो हमेशा कंपलसरी बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? POCl3 और HCl. POCl3 एंड HCl आर दी कंपलसरी बाय प्रोडक्ट. अगर PCl3 के साथ में किया होता तब भी हमारा प्रोडक्ट तो एसिड क्लोराइड ही होता, दैट इज RCOCl ही फॉर्म होता. बट कंपलसरी बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? फॉस्फोरस एसिड होता है, H3PO3. फॉस्फोरस एसिड हम ये पढ़ चुके हैं बेटा. अगर हमने लास्ट चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है कि जब भी क्लोरीनेटिंग एजेंट, कौन सा क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज करने से क्या बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है. SOCl2 के साथ भी करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? RCOCl तो रहेगा ही, प्लस SO2 गैस प्लस HCl, एंड दिस इज द बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट. ये भी हमने पढ़ के रखा है, थायोनिल क्लोराइड. एंड व्हेनेवर द रिएक्शन इज कैरिड आउट विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Pyridine. So this is the general reactions with chlorinating agents. तो कोई भी chlorinating agent use कर सकते हैं so that the carboxylic acid will convert into what? Acid chloride. एक example ले लेते हैं और ये reaction end करेंगे. जैसे CH3COOH है, इसका रिएक्शन अगर मैंने कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट एक ही के बाद साथ बताती हूँ, अभी PCl5 के साथ किया तो ये क्या बना देगा? CH3COCl बना देगा प्लस POCl3 प्लस HCl, ऐसा फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया अभी आपको कैसे किया मैंने? सो नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. तो अगर अमाइड फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? RCOOH है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड पढ़ रहे हैं अभी हम. RCOH है, इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा दो सो दैट इट गिव्स अमोनियम सॉल्ट. ये बेसिक नेचर का है और ये एसिडिक है. ये एसिड है और अमोनिया क्या है? बेस है. तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट. तो ये क्या फॉर्म कर देगा? RCOONH4, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. ये सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इसलिए से हीट कर दो सो दैट इट रिमूव्स वाटर आउट ऑफ इट, एंड व्हाट इज लेफ्ट? RCONH2 प्लस वाटर. एक H2 यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ, H2O रिमूव हो जाएगा, RCONH2 फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया ये रिएक्शन? सो दिस इज वेरी सिंपल. एक बेसिक रिएक्शन भी आपको बता देती हूँ. CH3COOH है, इसका रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराएंगे, अगेन इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. So it will give CH3COONH4 positively charged species. Again on heating it removes water. As it removes water, what is left? CH3CONH2 फॉर्म हो गया. ठीक है, तो अब हमने एसिड क्लोराइड्स भी बनाना भी सीख लिया और अमाइड्स भी. लेट्स सी दी एसिड एनहाइड्राइड पार्ट. एसिड एनहाइड्राइड पार्ट अगर बनाना है तो हमें क्या करना होता है? इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, RCOOH, RCOOH, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो. मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डिहाइड्रेशन कैरी आउट कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, और वो भी फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड है. बट ये कैसी रिएक्शन है मैंने आपको बताया? डिहाइड्रेशन, बिकॉज वी आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट, सो इट्स अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमें क्या लगता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगता है. अब यहाँ पर हम कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने वाले हैं? एक स्पेशल टाइप का डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में, दैट इज P2O5. P2O5
phosphorus pentaoxide, ये यूज करते हैं P2O5 as it removes water from it and what is left RrCOO with one common O, एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा. सेम ऐसा ही आप किसी और कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर जनरल रिएक्शन ली है, आप एसिटिक एसिड लेकर के करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा. और ये जो स्पीशीज फॉर्म हुआ है ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है. ठीक है. और अगर मैंने इसे CH3COOH CH3COOH इसके साथ पे किया होता ऑन हीटिंग विद प्रेजेंस ऑफ P2O5, अगेन इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इट एंड व्हाट इज लेफ्ट CH3CH3COCO विद वन कॉमन O, ये फॉर्म हो जाता है एंड दिस इज व्हाट एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, समझ में आया. सो वी हैव डन विद द एसिड एनहाइड्राइड पार्ट ऑल्सो. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट ओनली विद द ईस्टर्स पार्ट. लेट्स सी हाउ द ईस्टर्स आर प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछता है बेटा, इसीलिए मैं ये लास्ट में ले रही हूँ और इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है. ये हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं. फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, ईस्टरिफिकेशन बुलाते हैं इसे. क्या बुलाते हैं, ईस्टरिफिकेशन. याद आ रहा है आपको कुछ, हमने अल्कोहल्स चैप्टर में ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी. इसमें करते क्या है, इन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with alcohol, primary alcohol, and the reaction is to be carried out in presence of concentrated sulfuric acid, so that it removes water from it. और इसमें जब वाटर रिमूव करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड OH पार्ट देता है और H पार्ट कौन देता है, अल्कोहल देता है. सो दैट इट गिव्स CH3COO C2H5. ये क्या फॉर्म हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया. और ये जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. सो टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, समझ में आया. फिर ईस्टरिफिकेशन क्या है, तो ईस्टरिफिकेशन में मैंने आपको 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए. फर्स्ट, ये रिएक्शन कैसी है, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड टू स्टॉप द रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एंड टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी, and to stop the reversibility what we use concentrated sulfuric acid. First point. Second point, in this carboxylic acid जो होता है RCOOH, it gives what, OH negative ion and the alcohol part gives what, H. ठीक है, वैसे वाटर फॉर्म होता है. एंड फ्रॉम हाउ वी केम टू नो फ्रॉम आइसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक. उससे हमें पता चलता है कि वाटर जो रिमूव हुआ है वो उसमें से H पार्ट कहाँ से आया है और OH पार्ट कहाँ से आया है. इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है. इन शॉर्ट में आपको अभी मैकेनिज्म भी बता देती हूँ. बट बिफोर गोइंग फॉर दैट वी शुड नो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड्स टुवर्ड्स द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, हमें क्या रिमूव करना है, इसमें क्या है, ये मैंने क्या लिया है, एसिटिक एसिड. आपको बताया था रिएक्टिविटी एसिड की किस पर डिपेंड करती है, अल्किल पार्ट पे भी डिपेंड करती है. स्मॉलर इज द अल्किल पार्ट, मोर इज द रिएक्टिविटी. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर for carboxylic acids towards esterification reaction, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा. जैसे जैसे अल्किल पार्ट का साइज इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी. ये हो गया एसिड्स के लिए ऑर्डर. अगर अल्कोहल्स का केस देखना होगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल्स के केस में ऑर्डर कैसा रहेगा, ये जो है इसमें H रिलीज करा है और H रिलीज किससे इजीली हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल से इजीली H रिलीज हो जाता है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल मीन CH3OH C2H5OH, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड देन टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. सो दिस विल बी द ऑर्डर. ठीक है, मीन्स प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव as compared to secondary and tertiary. So this will be the order for the case of what, alcohols. ठीक है, समझ गया आपको यहाँ तक. मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ अभी आपको.